Hi friends, welcome to my YouTube channel SKN Math Tutorial. In previous class, we started the chapter continuity and did some more important problems. Today, we are going to discuss facts based on continuous function on an interval. Okay friends, let's start the chapter. Thank you friends. तो फ्रेंड्स देखेंगे some facts based on continuity of a function. तो first fact is given by if f is a continuous function at x is equals to a, then f of a is not is equals to 0, then there exists an open interval a minus delta a plus delta such that x belongs to a minus delta and a plus delta f of h some sign h f of a. Okay, तो if a function continuous होगा x is equals to a में, then f of a not equals to 0, then we have to write and there exists an open interval exist होगा a minus delta a plus delta, मतलब x का वैल्यू a minus delta to a plus delta का बीच में रहेगा, जो वैल्यू आएगा a minus delta to a plus delta बीच में रहेगा, then has the same sign of f of a हो जाएगा. Okay, this is the first point. Then second point is given by if f is a continuous function defined on closed interval ab, जब closed interval ab में define कर सकते हैं हम such that f of a into f of b less than 0, f of a and f of b क्या हो जाएगा less than 0 हो जाएगा, then there exists at least one solution of the equation f of x is equals to 0 in an open interval a b. then a b open interval में हम ले सकते हैं उसका solution f of a into f of b less than 0 ना जितना जो equation बन जाएगा उसका solution हम open interval a में ले सकते हैं. Okay, then देखो third point, if f is a continuous function defined on closed interval ab and k is any real number between f of a and f of b, then there exists at least one solution that f of x is equals to k in an open interval of ab. Okay, तो ओपन इंटरवल ए बी में वो k का f of x इज इक्वल्स टू k का वैल्यू लाइज करेगा. तो ओपन इंटरवल मतलब x लेस देन, ओपन इंटरवल मतलब ऐसे होता है कि x लेस देन a डॉट ऑफ b, मतलब b से कम होगा a से ज़्यादा होगा, a और b से सेम नहीं होगा, तो उसके हिसाब से f of x इज इक्वल टू k इज लाई बिटवीन a and b if f of x continuous function defined on closed interval ab. Okay, then fourth point is given by if a function f is continuous on a closed interval ab, then it is also bounded on ab. तो फंक्शन जब कंटिन्यूस हो जाएगा ए बी में, तो ए बी में कंटिन्यूस हो जाएगा मतलब ए बी क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि ए लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू बी लेस देन इज इक्वल, ए बी के साथ लेस देन हो जाएगा, ए और बी के बीच में आएगा, देन ए एंड बी भी इंक्लूड होगा, देन इट विल बी गिवन दैट क्लोज्ड इंटरवल. तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर mod f of x is less than is equals to k. तो इधर mod f of x आ जाएगा less than is equals to k आ जाएगा, देन k का वैल्यू a एंड b में लाइज करेगा जब वो क्लोज्ड इंटरवल बन जाएगा. ओके, देन द फिफ्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, if f is a continuous at every point of a closed interval I, then it assume that both an absolute maximum value m and absolute minimum value m somewhere in I, that is there are numbers x1 x2 in I, then हम लिख सकते हैं f of x1 is equals to m, f of x2 is equals to m. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका मतलब ये है कि देखो हम जो भी पॉइंट ले जाएंगे x1 x2 क्लोज ओपन इंटरवल में, तो वो बोल जाएगा लोअर बाउंड, उसको बोल सकते हैं अपर बाउंड, मतलब वो फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा x1 और x2 के बीच में. देन we have find that f of x1 is equal to small m and f of x2 is equal to capital M, where small m is the lower bound मतलब lower में होगा, and capital M is the upper bound, capital M is given by upper bound. Okay, that's why we can write m f of x less than that of capital M, then f of x का वैल्यू m and m से बीच में रहेगा. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर continuity of a function on an interval. Okay friends, so please note it down.
देखो फ्रेंड्स उसको लेकर 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो प्रूव दैट x इज इक्वल्स टू cos a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो प्रूव दैट x इज इक्वल cos a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2। तो वो फंक्शन को हम वो इंटरवल में कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं प्रूव करेंगे। ओके, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। द फंक्शन इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू cos a, देन यू कैन राइट x minus cos x is equal to 0, then f of x is equals to we get x minus cos x। समझ में है? तो हमको क्या चेक करना है, 0 to π/2 के अंदर चेक करना है। द इंटरवल इज गिवन बाय द इंटरवल इज गिवन बाय 0 to π/2। तो 0 to π/2 के बीच में चेक कैसे करना है, देखो f ऑफ 0 करेंगे। f ऑफ 0 करने से 0 माइनस cos 0 दैट इक्वल्स टू 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 0 माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 1। देन चेक करेंगे π/2 में, तो π/2 का चेक करने से क्या हो जाएगा, π/2 माइनस cos π/2, तो π/2 cos 90 का वैल्यू 0 दैट इक्वल्स टू आ जाएगा π/2। तो f ऑफ π/2 का वैल्यू आ गया π/2 आ गया। देन देखो हमारा x इज इक्वल्स 0, देन f ऑफ π/2 इज इक्वल 0 आ गया। तो दिस इज द a पॉइंट, दिस इज द b पॉइंट। तो हम ले सकते हैं f ऑफ 0 इंटू f ऑफ π/2 करने से क्या आ रहा है, देखो f ऑफ 0 का वैल्यू आ गया -1 इंटू f ऑफ π/2 का वैल्यू आ गया π/2 दैट इक्वल्स टू माइनस π/2 दैट इज इक्वल टू लेस देन 0। तो हमारा इक्वेशन आ गया f ऑफ 0 इंटू f ऑफ π/2, f ऑफ π/2 लेस देन दैट ऑफ 0। तो हमारा f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b ब्रैकेट में लिख दो, f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b लेस देन 0 आ गया। तो हमारा सेकंड फैक्ट था, मैं अभी जो पॉइंट्स बताया ना उसमें सेकंड पॉइंट में था व्हेन f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b लेस देन 0 देन वी कैन राइट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये इधर भी f ऑफ 0 एंड f ऑफ π/2 लेस देन 0 आ गया। देन f ऑफ a f ऑफ b लेस देन 0 आ गया, तो वी कैन राइट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 दैट इंप्लाइज f ऑफ x का वैल्यू कितना है, x माइनस cos x। तो x माइनस cos x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो व्हेन f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b लेस देन 0 देन f ऑफ x इज इक्वल 0, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल दैट इक्वल्स टू a एंड b वो हो रहे। तो व्हेन f ऑफ x इज इक्वल 0 देन x माइनस x इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो इट बिलोंग्स टू f ऑफ x बिलोंग्स टू a टू b मतलब हमारा 0 to π/2 के बीच वो फंक्शन लाई करेगा। ओके, तो उसके हिसाब से हमारा x का वैल्यू आ गया 0 to π/2। ओके, दैट इंप्लाइज व्हेन x इज इक्वल्स टू x माइनस cos x इक्वल 0, तो cos x इधर ले जाओ, x माइनस x इज इक्वल cos a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 to π/2 के बीच में अंदर x का वैल्यू लाई करेगा। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके लेकर और एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रूव दैट द एक्सप्रेशन 2 to power x प्लस x² अटेन्स द वैल्यू 2 फॉर ऑल x बिटवीन 0 to 1। तो x का जितना भी वैल्यू लेने से वो फंक्शन 0 to 1 बिटवीन लाई करेंगे, द वैल्यू इज 2। तो उसको प्रूव करेंगे कैसे, देखो सॉल्यूशन। द फंक्शन इज गिवन बाय, लेट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 to power x plus x²। द फंक्शन इज गिवन बाय 2 to power x plus x²। ओके, तो इफ f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x belongs to R, hence necessarily between 0 to 1। तो जो फंक्शन कंटिन्यूस होगा 0 to 1 क्लोज इंटरवल के बीच में, क्योंकि वो दिया गया है कि बिटवीन 0 to 1 में रहेगा, तो हेंस इट नेसेसरली इन क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to 1। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था, थोड़ा याद कर दो फ्रेंड्स। If f is a continuous function defined on ab and k is any real number between f of a and f of b, then there exists at least once f of x is equals to k। तो ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर देंगे।
तो हमारा देखो एफ ऑफ ए का वैल्यू ला दो, तो हियर ए इज गिवन बाई 0 एंड बी इज गिवन बाई 1। तो फर्स्ट ला दो एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 पुट करो एक्स के प्लेस में, तो 2 टू पावर 0, तो 0 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। 2 टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। देन 1 का वैल्यू लाओ 2 टू पावर 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ओके, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू गिवन बाई 1, देन एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू गिवन बाई 3। तो इधर देखो 1 एंड 3 के बीच में द नंबर इज गिवन बाई 2, तो 1 और 3 के बीच में रहता है 2, तो इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं 1 का वैल्यू हो गया एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 एंड 3 का वैल्यू हो रहा है एफ ऑफ 1, तो 3 के प्लेस में हम डाल सकते हैं एफ ऑफ 1। देन एफ ऑफ 0 एंड एफ 1 को प्लेस बीच में रहता है 2, तो एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 के बीच में रहता है 2, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 0 लेस देन 2 लेस देन एफ ऑफ 1, दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, उसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, इसका देन इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, देन x बिलोंग्स टू 0 टू 1 हो जाएगा। तो देन x बिलोंग्स टू 0 टू 1 हो जाएगा, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, देन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था क्या ना, इफ ए फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो गया, देन इट कैन बी रियल नंबर k such that f of a and f of b, then there exists a solution f of x is equals to k। तो हमारा देखो सपोज f of a and f of b में एक रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा, that is k, then we can say that f of x is equals to k is a solution of that equation। तो हमारा f of a मतलब 0 एंड f of b मतलब 1, तो f of 0 एंड f of 1 के बीच में एक रियल नंबर सेटिस्फाई किया, वो जो 2 होते हैं, तो इधर k के प्लेस में हमारा 2 हो गया। देन वी कैन राइट x बिलोंग्स टू 0 टू 1, देन f of x इज इक्वल्स टू 2, दैट्स प्रूव द रिजल्ट। तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट, बिकॉज प्रूव करने के लिए बोला था कि ना 2 टू पावर x स्क्वायर अटेन्स द वैल्यू ऑफ 2, तो हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 आ गया इन बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 के बीच में हमारा 2 आ गया। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन करेंगे, प्रूव दैट ex टू पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हैज ए सॉल्यूशन बिटवीन 0 टू 1। तो सेम प्रॉब्लम वो फैक्ट 2 के द्वारा प्रूव करेंगे। कैसे देखो, सॉल्यूशन द f of x, the given equation is ex minus 2 is equal to 0, then let take f of x is equals to ex minus 2। समझ में आएगा? तो the interval is given by 0 to 1। ओके, तो दिस इज द a पॉइंट, दिस इज द b पॉइंट। तो पहले f of 0 ला दो, तो f of 0 इक्वल्स टू क्या जाएगा, e to power 0 minus 2 दैट इक्वल्स टू e to power 0 1 minus 2 minus 1 आ जाएगा, देन f of 1 आ जाएगा e to power 1 minus 2, ओके, दैट इक्वल्स टू e minus 2 आ जाएगा। तो याद रखो e minus 2, e का वैल्यू होता है 2.72 minus 2 दैट इक्वल्स टू 0.72। समझ में आ गया? तो f of 0 इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, f of 1 इज इक्वल टू 0.72 आ गया। तो देन याद रखो e का वैल्यू होता है 2.72, तो उसके हिसाब से e के प्लेस में हम डाला 2.72। देन देखो f of 0 तो सॉरी, तो पहले ला दो LHL ला दो, लिमिट हैश टेंस टू, तो 0 के ऊपर और 1 के नीचे होना चाहिए, तो 0 के ऊपर मतलब 0 प्लस x टेंस टू 0 प्लस f of x ला देंगे। तो f of x का वैल्यू होता है ex टू पावर माइनस 2। तो हम इधर प्रूव कर सकते हैं लिमिट हैश टेंस टू 0, e टू पावर x के प्लेस में 0 प्लस मतलब 0 प्लस h कर देंगे, 0 प्लस h माइनस 2 दैट इक्वल्स टू आ जाएगा। देखो लिमिट है 0 प्लस h मतलब लिमिट हैश टेंस टू 0 e टू पावर h माइनस 2 दैट इक्वल्स टू e टू पावर 0 माइनस 2 दैट इक्वल्स टू माइनस 1 दैट इक्वल्स टू आ गया हमारा f of 0।
समझ में आया कि नहीं? तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू आया था -1, देन लिमिट एक्सटेंस टू मतलब LHL भी आ गया -1 दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो आ गया। देन हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ लिमिट RHL फाइंड करेंगे। RHL देखो लिमिट एक्सटेंस टू, तो इधर आना चाहिए 1 प्लस, तो 0 के ऊपर 1 के नीचे टेस्ट करना चाहिए, तो 0 प्लस हो गया, हम करेंगे 1 माइनस मतलब 1 के नीचे, ओके, x लेस देन 1 टेस्ट करेंगे, दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा EX माइनस 2। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 पुट करो, देन इधर x के प्लेस में 1 माइनस एच, 1 माइनस है ना, तो 1 माइनस एच करेंगे -2, दैट इक्वल्स टू लिमिट क्लोज करो 1 माइनस 0 -2 दैट इक्वल्स टू E माइनस 2, तो E का वैल्यू आ गया 2.72 माइनस 2, 2.72 माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 0.72 दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी 0.72 आया था, एफ ऑफ 1 आ गया, ओके। देन देखो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना -1, देन एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना 0.2, 0.72, -1 इंटू 0.72 आ जाएगा -0.72, वो हो रहा है लेस देन 0, दैट मीनिंग एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0 आ रहा है। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 आने से हमारा फंक्शन 0 to 1 के प्लेस में लाई करेगा, वो सेकेंड फैक्ट था। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 दैट इम्प्लाइज EX माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट होगा, देन द वैल्यू ऑफ x इज लाइज बिटवीन 0 to 1, ओके, व्हेन एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ b इज इक्वल टू 0, ओके फ्रेंड्स। तो प्लीज नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन करेंगे, सो दैट x टू पावर 5 प्लस x प्लस 1 0 फॉर ऑल x बिटवीन -1 to 0 में लाई करेंगे, ओके, x का वैल्यू लाई करेगा -1 to 0 के बीच में, ओके। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो सॉल्यूशन, लेट टेक द इक्वेशन इज गिवन बाय x प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो लेट एफ ऑफ x इज इक्वल टू बन जाएगा x टू पावर x प्लस 1, ओके। तो एफ ऑफ x के प्लेस में हम डाल सकते हैं, तो द इंटरवल इज गिवन बाय -1 to 0, -1 to 0 में चेक करेंगे। तो पहले लेंगे तो फर्स्ट लेंगे एफ ऑफ -1, तो एफ ऑफ -1 लाने से क्या हो जाएगा, -1 टू पावर 5, x के प्लेस में -1 डालेंगे, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल दैट इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। देन एफ ऑफ 0 लाएंगे, एफ ऑफ 0 होने से क्या हो जाएगा, 0 टू पावर 5 प्लस 0 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 1, ओके। तो हमारा LHL मतलब लिमिट एक्सटेंस टू, तो इधर लाएंगे -1 के बाद एंड 0 के नीचे, तो -1 के बाद मतलब -1 प्लस पॉजिटिव नंबर, जो भी नंबर ऐड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला ना, गिवन बाय x टू पावर 5 प्लस x प्लस 1 दैट इम्प्लाइज लिमिट वो हो जाएगा एक्सटेंस टू 0 कर दो, इधर एक्सटेंस टू 0 करने से वो हो जाएगा 1 -1 प्लस h टू पावर 5 प्लस -1 प्लस h प्लस 1, तो h के प्लेस में 0 पुट करो, तो 0 पुट करने से हो जाएगा -1 प्लस 0 टू पावर 5 प्लस -1 प्लस 0 दैट इक्वल्स टू प्लस 1। तो देखो -1 प्लस 0 टू पावर -1, देन इधर भी -1 आ जाएगा दैट इक्वल्स टू -1, ओके, दैट इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ऑफ -1, तो एफ ऑफ -1 भी -1 आया था, तो LHL भी -1 आ गए, तो उसके हिसाब से LHL इज इक्वल टू -1 आ गया। देन देखो फाइंड करेंगे RHL, तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंस टू -1 के नीचे 0, -1 के बाद 0 के नीचे, तो 0 के नीचे मतलब 0 माइनस पुट कर सकते हैं, 0 माइनस पुट करने से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है ना, x टू पावर 5 प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट वो बन जाएगा एक्सटेंस टू 0, देन 0 माइनस पुट करेंगे, ओके।
तो 0 माइनस एच का 5 प्लस 0 माइनस एच प्लस 1 इक्वल्स टू एच पुट करो 0 माइनस एच मतलब माइनस एच टू पावर 5 माइनस एच प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 0 पुट करो 0 टू पावर 5 माइनस एच माइनस 0 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 1 दैट इक्वल्स टू ऑल्सो एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी 1 आया था, तो उसके हिसाब से आर एच एल भी एफ ऑफ 0 आ गया। ओके, देन देखो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है, तो एफ ऑफ माइनस 1 का वैल्यू आ रहा है माइनस 1, देन एफ ऑफ 0 का वैल्यू आया था 1, तो माइनस 1 इंटू 1 दैट इक्वल्स टू माइनस 1 लेस देन 0। सो एफ ऑफ माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0 आ रहा है। समझ में आया? तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी करने से वो 0 आ रहा है। देन वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना ना एक्स टू पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0। तो x का जो वैल्यू माइनस 1 टू 0 के बीच में रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा प्रूफ हो गया। आज हम कंटिन्यूटी का डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं, तो थियोरी भी कंप्लीट हो गया। तो आप आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी टॉपिक्स हायर सेकेंडरी जो भी बुक का प्रॉब्लम कर सकते हो, जो भी नया आ रहा है, जो प्रॉब्लम भी नया आ रहा है, मुझे मैसेज दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के नीचे। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब बच्चे वीडियो को देख पाएंगे एंड पढ़ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।